آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے جاپان اوساکا ایکسپو میں تلنگانہ پویلین کا کیا افتتاح۔ ایکسپو میں حصہ لینے والی تلنگانہ ملک کی پہلی ریاست۔ ریاست میں آئندہ منعقد ہونے والے تمام انتخابات میں BRS کی کامیابی یقینی، MLC کے کویتا نے کیا دعویٰ۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ آندھرا پردیش میں بجلی گرنے سے 5 افراد کی موت، بارش کے دوران احتیاطی اقدامات اپنانے حکومت نے کی اپیل۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد MLC انتخابات کے سلسلے میں گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 22 اپریل کی شام 4 بجے سے 25 اپریل تک بار اینڈ ریسٹورنٹ، وائن شاپس اور پبس بند رکھنے کی محکمہ ایکسائز اور پولیس عہدیداروں نے ہدایت دی ہے، جس پر سختی کے ساتھ روب عمل لایا جائے گا۔ واضح ہے کہ 23 اپریل کو حیدرآباد MLC انتخابات کے لیے رائے دہی اور 25 اپریل کو رائے شماری کرتے ہوئے نتائج جاری کیے جائیں گے۔ ان انتخابات میں کارپوریٹرز، اراکین اسمبلی اور کونسل کے علاوہ اراکین پارلیمنٹ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ واضح ہے کہ MIM امیدوار ریاض الحسن آفندی کا مقابلہ BJP امیدوار سے ہے۔ صدر ریاستی BJP اور مرکزی وزیر کشن ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد MLC انتخابات میں رضاکاروں کی جماعت MIM کے امیدوار کو کانگریس اور BRS کامیاب بنانے کے لیے ان انتخاب میں اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا ہے، لیکن BRS اور کانگریس کارپوریٹرز ضمیر کی آواز پر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے BJP امیدوار کو کامیاب بنائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سابق میں BRS اور اب کانگریس کسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ مرکزی حکومت کی ریتو بیمہ پالیسی ریاست میں روب عمل لائے۔ وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی اور وزیر زراعت T ناگیشور راؤ نے نظام آباد میں منعقدہ ریتو مہوتسو سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ نظام آباد میں آئی فارم کمپنی کا قیام عمل میں لانے کے علاوہ ہلدی کے کسانوں کے تمام مسائل کی یکسوئی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس اقتدار پر آنے کے بعد 41,000 کروڑ روپیوں کے قرضات معاف کیے ہیں۔ اس کے علاوہ باریک چاول کی کاشت کرنے والوں کو فی کنٹل 500 روپے بونس بھی دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس جلسے سے ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ، صدر TPCC مہیش کمار گوڑ، مشیر خاص برائے حکومت محمد علی شبیر کے علاوہ دیگر نے خطاب کیا۔ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా నిజామాబాద్ వచ్చిన మరి పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నిజామాబాద్ కి పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని మీ పక్షాన పార్లమెంట్ లో మాట్లాడింది మీ ఉత్తమన్న। మరి ఇప్పటి వరకు ఆ పసుపు బోర్డు ప్రకటించింది కానీ పని మొదలు పెట్టేదని తెలుస్తుంది। మరి అనేక దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో అందరూ పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిని మరి ఈ రోజు నిజామాబాద్ రావడం, ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు రావడం నాకు ఎంతో సంతోషం, సంతృప్తి అని చెప్పింది మనం। ضلع نظام آباد میں منعقد ہونے والے ریتو مہوتسو کے آغاز سے قبل افراتفری کا ماحول اس وقت دیکھا گیا جب ریاستی وزراء کو لانے والے ہیلی کاپٹر کلکٹر آفس گراؤنڈ پر اترنے کی بجائے ریتو مہوتسو کے گراؤنڈ پر ہی اترا، جس کی وجہ سے گرد و غبار ہوئی اور عوام کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔
یہ واقعہ عہدیدار اور پولیس میں تعاون نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا اور ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ریاستی وزراء نے عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بی آر ایس رکن خانساز کونسل کے کویتا نے بھدراچلم میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کھمم اور دیگر اضلاع میں منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات میں تمام نشستوں پر بی آر ایس کامیابی حاصل کرتے ہوئے کانگریس کی الٹی گنتی شروع کر دے گی۔ کہ کویتا نے بتایا کہ متحدہ ضلع کھمم سے 3 وزراء بھٹی وکرمارکا، ٹی ناگیشور راؤ، پی سریواس ریڈی ہونے کے باوجود کھمم میں ایک نئی شاہراہ تعمیر نہیں کی گئی ہے، جبکہ بی آر ایس نے 3 میڈیکل کالجز اور کئی ایک ترقیاتی کاموں کو عروج عمل لایا ہے۔ కాబట్టి పార్టీలో అనేక విషయాలు ఉంటాయి, చర్చించుకుంటాం, మాట్లాడుకుంటాం. కానీ ఇవాళ రేపు సెల్ ఫోన్లు వచ్చినాక అంతర్గతం ఏం లేకుండా పోయింది, మొత్తం బహిర్గతమే ఉంది. సో పార్టీ సమావేశమైనా ఏదైనా సరే మొత్తం పబ్లిక్లోనే జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి సమావేశాలు అప్పుడప్పుడు జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే పార్టీలో ఉండేటటువంటి చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఉంటాయి, సమన్వయ లోపాలు ఉంటాయి, లోకల్గా ఉండేటటువంటి నాయకత్వాలతోని కొంత ఇంకా అగ్రెసివ్గా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. వాటన్నిటినీ సరిదిద్దుకోవడానికి మరి ఇటువంటి సమావేశాలు ఒక వేదికగా పనిచేస్తాయని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతా ఉన్నాను. మరి వాళ్ళ ఖమ్మం వస్తున్నాం, భద్రాచలం వస్తున్నాం అంటే कांग्रेस लीडर और कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए रोहित वेमुला एक्ट पर अमलावरी पर जोर दिया है। अपने मकतूब में राहुल गांधी ने कहा कि इस कानून पर अमल होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को जुल्म व ज़्यादती का सामना न करना पड़े। जिस तरह की मुश्किलात और जुल्म बी आर अम्बेडकर, रोहित वेमुला और लाखों दूसरों को बर्दाश्त करना पड़ा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वफ़द के हमरा ओसाका एक्सपो का मुशाहिदा किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू उनके हमरा मौजूद थे। एक्सपो में तेलंगाना जूम को भी नुमाया किया गया। पहली बार तेलंगाना के वज़ीर आला ने ओसाका के एक्सपो में भी शिरकत की। बैनुल अक़वामी एक्सपो में तेलंगाना को हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ है। कांग्रेस पार्टी के एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि ऐसी इत्तलात हैं कि बीआरएस पार्टी बीसी तबके के फर्द को पार्टी का सदर मुंतखब कर सकती है। मीडिया से बात करते हुए किरण रेड्डी ने कहा कि अगर बीआरएस के सदर बीसी तबके से हो तो उसका खैर मकदम करेंगे। कांग्रेस ने ज़ात पात का जो सर्वे करवाया है ये उसी का नतीजा है कि बीआरएस पार्टी बीसी को अपना सदर मुंतखब कर सकती है। किरण रेड्डी ने यह भी कहा कि बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब में केसीआर को अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका ये इल्ज़ाम था कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीब आवाम से लूटी गई रकम से मनाई जा रही है। किरण रेड्डी ने यह भी कहा कि केसीआर अब खड़े भी नहीं हो सकते तो किस तरह से वो वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के किसानों ने तेलंगाना के लोगों को खेती बाड़ी का तरीका सिखाया था। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जब 1923 में निज़ाम सागर प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस वक्त प्रकाशम, कृष्णा और गुंटूर के किसान आए और वो बांसवाड़ा, बोधन और डिचपल्ली में आबाद हुए और यहाँ के लोगों को ज़राअत की तालीम दी। आंध्रा के किसानों ने तेलंगाना के ज़रई शोबे में ग्रां कदर रोल अदा किया है। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ तेलंगाना वज़ीर आला के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना वो पहली रियासत थी जिसने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत की थी। इस बिल को पहले ही मनसूख किया जाना चाहिए था। जब से बीजेपी ने मुल्क का इख्तिदार संभाला है वो मुसलसल हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के मसाइल ही क्यों नज़र आते हैं, वो हिंदुस्तानी ख़वातीन के मसाइल पर क्यों तवज्जो नहीं देते। मुल्क को इस तरह से नहीं चलाया जाना चाहिए।
श्रीसलम SLBC टनल में बचाव और राहतकारी के काम अमलन ख़त्म हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला के जापान से वापसी के बाद इसका सरकारी तौर पर ऐलान किया जा सकता है। 22 फरवरी को टनल का हिस्सा मुनहदम हुआ था और उस वक्त 8 वर्कर्स फंस गए थे। 58 दिनों तक मुसलसिल बचाव और राहतकारी के काम जारी रखे गए। NDRF, SDRF, फौज, बहरिया के अलावा दूसरी टीमें भी बचाव और राहतकारी के कामों में शामिल की गई थीं। 58 दिनों के दौरान 9 मार्च को गुरप्रीत सिंह और 22 मार्च को मनोज कुमार की लाशें निकाली गई थीं। मज़ीद 6 वर्कर्स का हशर अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर मज़ीद खुदवाई नहीं की जा रही है और इससे दूसरे ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से बचाव और राहतकारी का ऑपरेशन रोके जाने की इत्तला है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मानो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मीवा के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह है कि 16 अप्रैल को मीवा के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया था, जबकि 17 अप्रैल को नताइज जारी किए गए। मीवा उर्दू यूनिवर्सिटी के सेक्शन ऑफिसर के ओहदे तक गैर तदरीसी अमले की नुमाइंदगी करते हैं। इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अज़ीम के मुताबिक शेख नवीद मुसलसिल तीसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। मजमूई तौर पर ये उनकी बहैसियत सदर 5वीं मियाद है। उनके अलावा धर्मजीत कुमार नायब सदर, मोहम्मद शाहनवाज अली कुरैशी जनरल सेक्रेटरी, MA नवाज़ जॉइंट सेक्रेटरी, सैयद गौस सेक्रेटरी, सैयद यूसुफ रज़वी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुसलसिल 7वीं मरतबा और रज़ाक शरीफ क़ासिद के ओहदे पर मुंतखब हुए। इनके अलावा मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आसिफ और MA क़य्यूम बाबा का अराकीन के तौर पर इंतखाब अमल में आया। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार ने 9 मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद दी। शहर के मशहूर इलाके मुशराबाद में एक इंधोनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया, जहां 6 माह कबल एक खातून का कत्ल करके DBR मिल की तीसरी मंजिल पर वाक़े सम्प में फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक लाश मुकम्मल तौर पर ढांचे में तब्दील हो चुकी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये वाक़या कई माह पुराना है। खातून की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही दुमलगुड़ा पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और फौरी टीम को तलब कर लिया गया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश कर रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में एक ही दिन में बिजली गिरने के वाक़यात में 5 अफराद हलाक और 1 शख्स ज़ख्मी हो गया। ज़िले प्रकाशम की SC कॉलोनी के रहने वाले सनी और आकाश ज़िले करनूल के हनुमानपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इराना के अलावा दीगर 2 अफराद की मौत बिजली गिरने की वजह से हो गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में आज़मीन हज के लिए मुनक़्क़िद किए जा रहे हज टीका अंदाज़ी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने दवाखाने से रुजू होने वाले मरीज़ों से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट RM और हॉस्पिटल स्टाफ अराकीन के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। अलावाज़ी मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने शाह हातिम तालाब पर मच्छरों की अफज़ाइश को ख़त्म करने की गर्ज से किए जाने वाले कामों का भी तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर ओहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 9:30 पौने 10 से गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में हाजियों के लिए कैंप डाला गया था। एरिया हॉस्पिटल में उस कैंप के अंदर मैं समझता हूँ 600 हाजियों का यहाँ पर टोकन दिए गए और इन हाजियों को पूरे मेडिकल चेकअप करके
वैक्सीन और इनको ड्रॉप डाल रहे हैं। और उसके बाद गोलकुंडा हॉस्पिटल के अंदर एरिया हॉस्पिटल में वहाँ के सुपरिटेंडेंट जनाब श्रीनिवास साहब आरएमओ के साथ में तमाम पेशेंट से मुलाकात की गई और वहाँ के पेशेंट से तफसीलात दिया गया। और मैं समझता हूँ इससे हालिया के अंदर आज से 4 महीने पहले सदर मुहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने एक प्रपोज़ल दिया था जिसके अंदर नई बिल्डिंग के लिए वो मंजूर हो चुकी 4 करोड़ 60 लाख की लागत से। और आज उसका भी तफसीली नई बिल्डिंग कहाँ पर तामीर करना, उस डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे, उनको भी तफसीलात बताया गया। वहाँ पर G+2 आउटपोस्ट बिल्डिंग वो भी बिल्डिंग है। और उसी तरीके से गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर 1 करोड़ 60 लाख की लागत से हॉस्पिटल के अंदर नए मशीनरीज मंजूर हुए, उसका भी आज मुआयना किया गया। और इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर ये तमाम के तमाम इफ्तिताह अमल में आएंगे। राजेंद्र नगर में हंगामाराई करने वाले अफराद को हिरासत में लिया गया। PNT कॉलोनी में चोरों का गिरोह मकान में दाखिल हुआ और घर में मौजूद जोड़े को चाकू से डराया। मुजरिमीन ने 6 तोला सोना, 2 मोबाइल फ़ोन्स उड़ा लिए थे। मुतासरा जोड़े ने राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद चोरी में मुलविस 4 हमलावरों की शिनाख्त कर ली गई। తొమ్మిదిన్నర ప్రాంతంలో వైట్ కలర్ షిఫ్ట్ కార్ డిజైర్లో ఒక 5 వ్యక్తులు వచ్చి PNT కాలనీ జాకీర్ అలీ అనే ఇంటికి కొద్ది దూరంలో వెహికల్ పార్క్ చేసుకొని 4 వ్యక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి తలుపు కొట్టి తలుపు తీయగానే ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఫిర్యాదురాలు భార్యకి కత్తి చూపించి బెదిరించి అల్మారీ ఓపెన్ చేయమని చెప్పి అల్మారీలో ఉన్నటువంటి 6 తులాల బంగారము, 20 తులాల సిల్వర్ మరియు 20,000 క్యాష్ తీసుకొని పారిపోయినారు. అదే కారులో మేము ఇమీడియట్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా పోలీస్ స్టేషన్స్, మా డివిజన్లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్స్, క్లూస్ టీమ్, టెక్నికల్ టీమ్ అందరిని పిలిపించి సీసీటీవీ సర్వేలెన్స్ మొత్తం వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. कुलहैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने रैन बाज़ार और तालाब चिंचलम डिवीज़न के इलाक़ों में किए जा रहे कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों से कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। राडियो न्यूज़ की दीगर खबरों पर सरसरी नजर डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज मुलाजमीन को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। 17वीं सिविल सर्विस डे के मौके पर विज्ञान भवन में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो मुल्क की खिदमत को अपनी अहम जिम्मेदारी समझे, जो जमहूरी और दस्तूरी तरीके से इंतज़ामिया चलाए, ईमानदारी से, डिसिप्लिन से भरा हुआ हो, जो मुल्क के लिए दिन रात काम करे। आज जब हम विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो सरदार पटेल की बातें और भी अहमियत की हामिल हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया में तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी डेमोक्रेसी और पॉलिसी मेकिंग को पुराने निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। इसलिए साल 2014 के बाद से हमने गैर मामूली तब्दीलियाँ की हैं। आज हिंदुस्तान का नौजवान, किसान और ख़वातीन एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही हैं। आलमी तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार पर आगे बढ़ना चाहिए और इसे बरकरार रखना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाले अवार्ड याफ्तागान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर अवामी खिदमात से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को मशवरे भी दिए। सिविल सर्वेंट डे के मौके पर आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजश्री शाह को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर-ए-आज़म ने आदिलाबाद ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों पर ये अवार्ड दिया है। आदिलाबाद के नर नूर ब्लॉक को आदिलाबाद के लिए विखार का बायस करार दिया जाता है और इसे हिंदुस्तान के 5 बेहतरीन ब्लॉक्स में शामिल किया गया है। मुल्क के 426 ब्लॉक के मिन जुमला नारनूर ब्लॉक को 5 बेहतरीन ब्लॉक्स में शामिल किया गया था। गवर्नेंस और तरक्की के इक़दामात को भी अवार्ड के ज़ुमरे में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन के अलावा दूसरे इलाक़ों में हालात को संगीन बताया है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नायब वज़ीर आला को मुतासिरा इलाक़ों में भेजा गया है। अरकान असम्बली भी इलाक़ों में मुतहरिक हैं। कौमी शाहराह पर राहतकारी के काम जारी हैं। जिन रिहायशी इलाक़ों में तबाही हुई है वहाँ पर भी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मरकज़ से भी बात की गई है और NDRF की टीमों को भेजा गया है। उनका कहना था कि रियासत को मरकज़ी फंड्स की ज़रूरत है। रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, खासकर हाईवे के इर्द गिर्द। कल मैंने मौके पे डिप्टी CM साहब को भेजा था। मुकामी जो हमारे MLA 2 हैं रामबन के और बानीहाल पे के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज इन पसियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि रामबन में बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है। सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, लोग फंसे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरख्तों और पहाड़ों को काटने से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने मुतालबा किया कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें फ़ौरी बाहर निकाला जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन में गुज़िश्ता 2 दिनों में ज़मीन खिसकने के वाक़े से गैर मामूली तबाही हुई है। कौमी शाहराह 44 पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो चुकी है। लोग पैदल रास्ता तय करने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि शादी की एक बारात भी पैदल जाती हुई देखी गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश, जालाबारी और ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। कई मकामात से मलबे की सफाई का काम जारी है। आम जिंदगी पर गैर मामूली असर देखा गया। TMC के MP शत्रुघ्न सिन्हा ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में पेश आए वाक़यात को साजिश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी एक खातून वज़ीर आला हैं। BJP मुसलसल बंगाल में अपनी ज़मीन बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होगी। BJP को अपने मक़ासिद में कामयाबी नहीं मिलेगी। मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने लीवर हेल्थ तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने लीवर यानी जिगर की बेहतर निगहदाश्त करनी चाहिए। अगर जिगर बेहतर रहेगा तो हमारी सेहत बेहतर रहेगी और अगर हमारे जिगर को ज़रा भी नुकसान होगा तो हमारी पूरी सेहत मुतासिर होगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि दिल की बीमारी, शुगर, हाइपरटेंशन और कैंसर से भी मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए हमें जिगर पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। भाग्य है कि हमें आज यहाँ वर्ल्ड लिवर डे जो 18 तारीख को था, जिसमें हम सब लोग उस दिन नहीं बना सके,
اور آج 21 تاریخ کو ہم یہاں سب اکتر آئے ہیں. ڈاکٹر سرین آپ کو لیور ڈے کے بارے میں کیمپ میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم سب کو اسے منانا ہے. لیکن ہمیں 2-3 چیزیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ لیور صحیح ہوتا ہے تو ڈائجیشن صحیح ہوتا ہے, لیور صحیح ہوتا ہے تو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے اور ہماری انرجی کی سٹوریج بھی ہوتی ہے. لیکن لیور اگر گڑبڑ ہوتا ہے تو ہر طریقے کی بیماری بھی ہم سب کو لگتی ہے, پھر چاہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہو, ڈائبٹیز ہو, ہائپر ٹینشن ہو, اور یہاں تک کہ کینسر بھی ڈیولپ ہونے میں دیر. کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی امریکہ کے دورے پر ہیں. انہوں نے بوسٹن پہنچنے کے بعد یہاں براؤن یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ ایک سیشن کیا. اس میں انہوں نے ہندوستان میں انتخابی نظام میں سنگین مسائل کی بات کرتے ہوئے مہاراشٹر انتخابات کا معاملہ اٹھایا. راہل گاندھی نے کہا کہ آسان الفاظ میں کہیں تو اسمبلی انتخابات میں مہاراشٹر میں نوجوانوں کی تعداد سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. الیکشن کمیشن نے ہمیں شام 5:30 بجے تک کی ووٹنگ کا ڈاٹا دیا اور شام 5:30 بجے سے 7:30 بجے کے درمیان جب ووٹنگ بند ہونی چاہیے تھی 65 لاکھ ووٹروں نے ووٹ ڈالے. اب ایسا ہونا جسمانی طور پر ممکن نہیں ہے نا, کیونکہ ایک ووٹر کو ووٹنگ کرنے میں تقریباً 3 منٹ لگتے ہیں, اور اگر آپ حساب کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رات 2 بجے تک ووٹروں کی لائن لگی رہی اور پوری رات ووٹنگ کرتے رہے, اور ایسا نہیں ہوا. بی جے پی کی ترجمان سمبت پاترا نے امریکہ میں راہل گاندھی کے ریمارک پر تنقید کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمبت پاترا نے کہا کہ راہل گاندھی کی عادت بن چکی ہے کہ بیرون ملک جا کر ہمیشہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے چارج شیٹ میں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کا نام شامل کیا ہے. جو لوگ 50,000 روپے کے شخصی مچلکے پر ضمانت پر ہیں وہ آج ملک کے جمہوری اقدار کو بیرونی ملک میں بیٹھ کر پامال کر رہے ہیں. کانگریس پارٹی کے لیڈر پرمود تیواری نے امریکہ میں الیکشن کمیشن سے متعلق راہل گاندھی کے ریمارک کی مدافعت کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرمود تیواری نے کہا کہ راہل گاندھی نے حقائق بیان کیے ہیں, دنیا کو بھی اس کا پتہ چلنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک کا الیکشن کمیشن جانبدار ہو تو پھر شفاف انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن شفاف ہے, کیا الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے, اس پر سے خاموشی توڑنی چاہیے. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی ونس اپنی اہلیہ اوشا ونس اور بچوں کے ہمراہ دہلی پہنچ گئے ہیں. دہلی کے پالم ایئرپورٹ پر مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے امریکی صدر اور ان کے افراد خاندان کا استقبال کیا. ایئرپورٹ پر نائب صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. روایتی ہندوستانی رقص کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا. امریکی نائب صدر نے اکشردھام مندر کے بھی درشن کیے. دوپہر میں امریکی نائب صدر نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. امریکی نائب صدر کی اہلیہ اوشا ونس آندھرا پردیش میں اپنے آبائی ضلع کا دورہ کریں گی. جھارکھنڈ کے بوکارو ضلع کے لوگوپاڑا میں پولیس اور سی آر پی ایف کی ٹیموں کے ساتھ ماونوزوں کی زبردست جھڑپ چل رہی ہے. اس جھڑپ میں اب تک 8 ماونوازوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. سلامتی دستوں کی ٹیم کی قیادت کوئلہ علاقے کے ڈی آئی جی سریندر کمار جھا, ایس پی منوج سورگیاری سمیت دیگر افسران کر رہے ہیں. مقامی واقعے سے ایک رائفل اور ایک سیلف لوڈنگ رائفل برآمد کی گئی ہے. پولیس اور نکسلیوں کے درمیان جھڑپ جاری ہے. بوکارو کے لپنیا تھانے حلقے کے منڈا ٹولی وسوسو کے نزدیک یہ تصادم پیر کی صبح شروع ہوا. سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ ہلاک ہوئے نکسلیوں کی شناخت بھی کی جا رہی ہے. جھارکھنڈ کے ڈی جی پی انوراگ گپتا نے کہا ہے کہ جو بھی ماویسٹ قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ جلد قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے انکاؤنٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ماویسٹوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارا مشن جاری ہے.
शिंदे शिवसेना के लीडर संजय निरुपम ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दरमियान मुफाहमत की खबरों पर कहा कि उद्धव ठाकरे ग्रुप सियासी तौर पर ख़त्म हो चुका है। अपनी बका के लिए पहले कांग्रेस से हाथ मिलाया, फिर मुसलमानों के वोट के लिए पॉलिसी बदल दी और अब राज ठाकरे का हाथ थाम रहे हैं। राज ठाकरे को इस बारे में वजाहत करनी चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की जानिब से साल 2024-25 के लिए पीर को जारी करदा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के A+ जुमरे में T20 से रिटायर हो चुके रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा बरकरार रहेंगे। नीज़ गुज़िश्ता साल डोमेस्टिक मैच न खेलने पर तादीबी कार्रवाई के बाद श्रेयस अय्यर को कैटेगरी बी और ईशान किशन को कैटेगरी सी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीसीसीआई ने पीर को 21 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक कुल 34 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एक रोज़ा वर्ल्ड कप के बाद मुसलसल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से बाहर रहने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले वापसी करने वाले तजुर्बेकार तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शामी कैटेगरी ए में बरकरार है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जापान ओसाका एक्सपो में तेलंगाना पवेलियन का किया इफ्तिताह। एक्सपो में हिस्सा लेने वाली तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत। रियासत में आइंदा मुनक़िद होने वाले तमाम इंतखाबात में BRS की कामयाबी यकीनी, MLC के कविता ने किया दावा। मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने से 5 अफराद की मौत। बारिश के दौरान एहतियाती इक़दामात अपनाने हुकूमत ने की अपील। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।